Hello dear students, welcome back in chemistry classes. In last class we have studied colligative property. In colligative property, last topic osmosis and osmotic pressure, right? Next we have studied type of solution on the basis osmotic pressure. The next topic, type of solution. Type of solution on the basis of osmotic pressure, right? Three type solution. First, isotonic. Second, hypertonic. And third, hypotonic. Three solutions according to osmotic pressure. Iso means equal, hyper more than, and hypo less than, right? If two solutions have equal osmotic pressure, then known as isotonic solutions. And one solution having osmotic pressure more than other solutions called hypertonic. %, salt, and 20% solution. Or hypotonic, it means a solution having less than osmotic pressure other than solution, right? 10%, तो ये हो गया 20% और ये हो गया 10% solution. In the solution, the osmotic pressure is equal, so no transport of the solvent by SPM, and in which solution having more osmotic pressure, then solvent enter the cells, the salt, from salt the solvent out the solution and cell shrink, and in which solvent particle goes to cells and cell swell up, right? So type of solution according to osmotic pressure, three types: isotonic, hypertonic, and hypotonic. Isotonic, it means these solution having equal osmotic pressure are known as isotonic, and it means one solution having more osmotic pressure other than, and in this less than
हैविंग लेस देन अदर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वी आर स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है, या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर और डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इन एग्जाम क्वेश्चन रिवर्स ऑस्मोसिस से भी आ सकता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर से भी आ सकता है, एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के बेस पे भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए मस्ट बी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। What specific features of the SPM? In SPM, only solvent passes solvent molecule, do not solute particles, right? If applied pressure more than osmotic pressure, then solvent particle pass through SPM. Right? P is greater than pi. Then process reverse. Then process reverse. According to this, if we cannot apply the external pressure more than osmotic pressure, solvent particle goes to solutions. But the process reverse, it means applied pressure more than osmotic pressure. So water molecules goes to solvent part and purification of water या सी वाटर का क्या किया जा रहा है, डिसैलिनेशन, राइट। मस्ट बी noted the external pressure is greater than osmotic pressure and the osmosis process is reversed, known as reverse osmosis, right? तो रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर अपने आगे का जो पार्ट है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मोलर मास, वो हटा दिया गया है। अभी इस चैप्टर में लास्ट एंड फाइनल डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। व्हाट आर राउल्ट्स लॉ? इन राउल्ट्स लॉ वी आर स्टडी ए वोलेटाइल सॉल्यूशन, the partial vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction, its mole fraction। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें किसी भी कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट गिवन टेम्परेचर, राइट। अब हम पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। इट मींस अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
two type solutions, one ideal solution and second non-ideal solution. ध्यान से देखिए, we have studied two type solution, ideal solution and non-ideal solution. We have studied with comparison. Ideal means the solution obey Raoult's law is non-ideal solution. क्या बताया मैंने आपको कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबेज राउल्ट्स लॉ, वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन. डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. राइट. नेक्स्ट, when the solute particle added with solvent to form solution, then del mixing H, enthalpy changes या change in enthalpy must be zero. Right? When solute particle added with solvent, then change in enthalpy must be zero. The situation of a ideal solution and non-ideal solutions is not equal to zero. When solute particle add with solvent, then some changes in enthalpy, it is not equal to zero, या तो less than या more than. Right. Third, when mix the solute and solvent, then change in volume del V is equal to zero. Change in volume must be zero. The situation of ideal solutions and in non-ideal solutions, del X volume is not equal to zero. When solute added with solvent, then the volume of solution is not equal to zero. It means उसके वॉल्यूम मिक्स करने पर वॉल्यूम या तो लेस देन होगा या मोर देन, और यहाँ वॉल्यूम में क्या नहीं होता, किसी भी प्रकार का मिक्स करने पर चेंजेस नहीं आता. तो मेनली three conditions in which found the solution are known as ideal solutions, and does not follow the three conditions, the solution in a non-ideal solution. Right. अब एक्चुअल में no solutions is ideal solution, but nearly ideal solutions. Some solutions example must be read. First, N-hexane heptane, right? Second, chloroethane, bromoethane. Third, benzene, toluene.
right? अब 3 example for ideal solution and hexane and heptane. It means same nature. When A2 type solute particle added with B2 solvent and to form AB solution. The interaction AB type molecule and A2 type and B2 type almost equal, not less than, not more than, and equal to molecular interaction, then form ideal solutions, right? But non-ideal solution form 2 type डेविएशन. जो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उनमें 2 टाइप से डेविएशन होता है. 1 पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन. right? 2 type non ideal solution. One positive deviation and second negative deviation, right? In which first condition does not obey Raoult's law. This type solution does not obey Raoult's law, in which delta H is equal to positive and in this delta H negative. It means the process endothermic and in this process exothermic, right? In पॉजिटिव डेविएशन ध्यान दीजिए, राउल्ट लॉ, when 2 components A2 solute and B2 solvent mix each other and to form AB solution, right? So the partial pressure of A2 type molecule PA in solution and for B2 solvent particle PB according to Raoult's law, PA is equal to PA standard XA and PB is equal to PB not XB. ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ है, राइट? बट इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन does not obey Raoult's law.
it means vapor pressure या partial pressure of each component is not equal to, and we are study positive deviations. In positive deviations, PA is greater than PA standard XA and PB is greater than PB standard XB. ठीक है? According to graphical represent, XA is equal to 1, XB is equal to 0 and XA is equal to 1, XB is equal to 1. Then ये PA, ये PB और ये PA प्लस PB, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन है, PA की वैल्यू ज्यादा है, PB की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन, PAB की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, तो in positive deviations the components vapor pressure is more than in pure state, right? In negative deviation, delta S mixing enthalpy, changes of enthalpy of negative means exothermic, and according to Raoult's law, PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PA XB, right? And PS, PA plus PB, but in this negative deviation, PA is less than PA XA and PB is less than PB naught XB. We are studying non-ideal solutions. According to deviation, two types, positive deviation and a negative deviation. The main difference, first we are study delta H is positive and in this delta H is a negative, right? फिर हम इनको according to Raoult दो बात करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव का मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, इट मीन्स वहां क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और नेगेटिव इट मीन्स वहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, अब A2 सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो B2 सॉल्वेंट में हम डिजोल्व करते हैं तो AB टाइप का सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ AB जो मोलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ध्यान दीजिए, AB मोलिकुलर इंटरेक्शन है इज वीकर देन A2 एंड B2 मोलिकुलर, ठीक है। यहाँ AB जो मोलिकुलर इंटरेक्शन है वो क्या है, वीकर है, इनसे B2 और A2 से, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिसके कारण यहाँ जो A का वेपर प्रेशर और B का जो वेपर प्रेशर है
वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो ये जब ए और बी का ज्यादा बनेगा तो बनने वाले सॉल्यूशन का भी क्या हो जाएगा, ये तो क्या होता है पी ए प्लस पी टी, ये पी एस यानी सॉल्यूशन का है ए कंपोनेंट और बी का, ये क्या आ गया ज्यादा। तो यहाँ किस प्रकार का डेविएशन आ गया, पॉजिटिव डेविएशन। और इन नेगेटिव डेविएशन अब क्या देख रहे हैं कि जो पी ए और पी बी है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। तो वही ध्यान दीजिए कि A2 प्लस B2 मिक्स N2 फॉर्म AB। तो A लेस देन और B लेस देन, तो यहां जो AB का इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। इन दो से इनका क्या है, स्ट्रॉन्गर। ये बात कंपैरिजन सहित समझना है, ध्यान दो। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है दो कंपोनेंट हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन भी 2 टाइप होगी। अगर ये 1 है तो ये 0, और ये 0 तो बी टाइप की क्या हो जाएगी, 1। अब वेपर प्रेशर में देखेंगे तो अपने पास एंड अब ये किसको शो कर रहा है, पी बी, और ये किसको शो कर रहा है, पी ए जनरल। ठीक है, और अब इनको क्या कर दिया, टोटल आ गया ये पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, राउल्ट लॉ है। बट यहाँ डेविएशन कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि ए बी का जो ये प्रेशर है पी ए का कम है और पी बी का भी कम है, तो लेस है और बनने वाले सॉल्यूशन में भी क्या जाएगा, कम आ जाएगा। इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। पी ए पी बी, तो मेनली पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। यहाँ राउल्ट लॉ, और इसमें देखना है कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है सॉल्यूशन का, बनने वाले सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, वीक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। पॉजिटिव के अंदर यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट है वो ज्यादा होगा, और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण इसको नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के रूप में शो किया जाता है। तो अभी अपने पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, इट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी हम विद एग्जांपल दोबारा डिटेल से इनका कंपैरिजन करेंगे। अभी ध्यान दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन, एग्जांपल C2H5OH प्लस C6H14, इथाइल एल्कोहल एंड हेक्सेन, राइट। C2OH to form intermolecular hydrogen bond. We add हेक्सेन, या इथाइल एल्कोहल में हेक्सेन डिसॉल्व करते हैं, तो हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे,
ब्रेकेज करेंगे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन मोर देन कंपोनेंट। जो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है उनसे बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किस टाइप की डेविएशन आएगी, पॉजिटिव डेविएशन आएगी। और तो अब यहां पे क्या होगा कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, वो डिसोल्व नहीं होंगे, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, राइट। और नेगेटिव डेविएशन में ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं अपने क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। In this form a hydrogen bond. When mixed with acetone chloroform, then form hydrogen bond N2 attraction greater than। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था AB के यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उनका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है नेगेटिव डेविएशन, और इसमें अट्रैक्शन पावर कैसा कम होता है। अब अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन कंपोनेंट, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे, एक एक एग्जांपल अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया कि इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है कंपोनेंट से, किसका, सॉल्यूशन का, और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं और इसको नेगेटिव डेविएशन। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस टाइप से ये पॉइंट्स अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सिलेबस YouTube के माध्यम से वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से सुने, ब्लैक बोर्ड पे जो मैं समझा रहा हूं उसको देखें और अपने नोट्स बनाएं। और कुछ हेल्प आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक की भी ले सकते हो, जिससे आप जो मैं डेरिवेशन जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको नोटिफाई करते रहें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, दिए गए न्यूमेरिक्स को सोल्व करें, क्योंकि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। मस्ट बी 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आर गिवन इन CBSE एग्जाम। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर का पूरा अध्ययन करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।